الرحیم۔ آج ہم اپنے قائد، اپنے محسن، ایک عظیم ہستی کی بارگاہ میں یہاں حاضر ہیں، جناب محمد علی جناح، جنہوں نے ہمیں اتنی بڑی قربانیوں کے بعد پاکستان ہمیں ہمارے حوالے کیا۔ پاکستان میں کے حوالے سے ان کی بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس پہ اگر ہم عمل کریں تو ہم یقیناً پاکستان اس طرح بنا سکتے ہیں جیسے ان کی خواہش تھی۔ بد نصیبی سے، بدقسمتی سے ان کے فرمودات کو، ان کے احکامات کو، ان کی خواہشوں کو بھلا دیا گیا، اور خصوصاً بہاولپور کے حوالے سے کہ جس وقت یہ ریاست تھی ایک خوشحال ریاست تھی، اور قائد اعظم کے بقول، اور یہ ریکارڈ پہ موجود ہے، ابھی ہمارے میوزیم میں بھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ قائد اعظم نے جو قائد بہاولپور کو انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے جب یہ تحریک چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بہاولپور کی صورت میں پاکستان تو پہلے ہی موجود ہے۔ تو وہ علاقہ کہ جس کے لیے قائد اعظم جو ہے وہ فرمائش کیا کرتے تھے کہ اگر مجھے کہیں رکھنا ہے تو مجھے بہاولپور میں لے کے جانا، اگر مجھے کہیں کی سیر کروانی ہے تو بہاولپور لے کے جانا۔ یہ ان کا دلی لگاؤ تھا بہاولپور کے ساتھ، اور وہ مرتے دم تک یہی خواہش تھی ان کی، اور وہ اتنا ان کا پیار تھا بہاولپور کے ساتھ کہ انہوں نے ڈاکومنٹ کیا ان چیزوں کو کہ بہاولپور کی جو حیثیت ہے ریاست، اس وقت کی ریاست کو کی جو حیثیت ہے وہ ایک اکائی کی صورت میں رہے گی، یعنی صوبائی حیثیت اس کی جو ہے وہ قائم کی جائے گی، اور بہاولپور جو ہے وہ اپنے وسائل کے ساتھ اور اپنی آمدنی کے ساتھ اور اپنی محنت کے ساتھ وہ خوشحالی کے جو راستہ چل رہا تھا اس پہ قائم رہے۔ 4 سال تک تقریباً جو ہے وہ صوبائی حیثیت اس کی بحال کی گئی۔ صوبہ کے حوالے سے یہ ریاست رہی، یہ بہاولپور کا علاقہ رہا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کچھ حکمرانوں کو، کچھ ہمارے جو ظالم و جابر طبقہ ایک ہے، اس کی نگاہوں میں یہ آیا کہ یہ بہاولپور کا علاقہ ایک سونے کی چڑیا ہے، سونے کی چڑیا کو اب قابض کیسے قبضہ کیا جائے۔ تو ان کو یہ نظر آیا، بغیر کسی سے مشورہ کیے ہوئے، بغیر کوئی اس کی سروے کیے ہوئے، یا بغیر کوئی اس کی فیزیبلٹی بنائے ہوئے، راتوں رات یہ فیصلہ ہو گیا کہ بہاولپور جو ہے پوری جو صوبائی حیثیت تھی اس کی، اس کو ختم کر کے اس کو پنجاب کے جو ہے وہ قبضے میں دے دیا۔ ہم یہاں پہ اس وقت قائد اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں کہ اے قائد اعظم، اے ہمارے محسن، اے ہمارے بابا، اے ہمارے کرتا دھرتا جو آپ نے بنیاد رکھی تھی، ہم اس کے ساتھ تو کھڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان ہمارا دل ہے، ہماری جان ہے، ہمارا سب کچھ ہے، لیکن آپ کو ہم یہاں یہ بتانے آئے ہیں، آپ کو یہ ہم باور کرانے آئے ہیں، ہم آپ کے پاس فریاد لے کے آئے ہیں، ہم آپ کے پاس اپنے آنسو لے کے آئے ہیں، ہم آپ کے پاس اپنا سب کچھ بیان کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کے بعد ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے۔ ہمارے وہ خوشحال علاقہ جس کے اوپر لوگ رش کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ برطانیہ کے لوگ رش کیا کرتے تھے، برطانیہ کی ملکہ وزٹ یہاں کیا کرتی تھی، یا وہاں پہ نواب صاحب جاتے تھے، وہ کہتے کہ بہاولپور میں کیا ایسی چیز ہے کہ جس میں قائد اعظم بھی وہاں جاتے ہیں، وہاں پہ دنیا کے سارے لوگ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ ہمارے علاقے میں ایک ایک بندہ جو ہے وہ پیار اور محبت سے بھرا ہوا ہے۔ تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں قائد اعظم، آپ کو سب یاد ہے، آپ کو سب معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ بہاولپور نے، پاکستان کے ساتھ بہاولپور نے کتنا اچھا برتاؤ کیا، کتنی محبتیں دی، اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ آج ہمارے بچوں کے پاس نہ تعلیم ہے، نہ روزگار ہے، نہ صحت ہے۔ ہماری عورتیں کراچی، لاہور، ملتان، پشاور، پتہ نہیں کہاں کہاں جو ہے وہ رلتے پھر رہے ہیں، مزدوریاں کر رہے ہیں، لوگوں کی جھاڑیں کھا رہے ہیں۔ کیا آپ نے ہماری ریاست کے لیے یہی سوچا تھا؟ کیا ہمارے بہاولپور کے لیے آپ نے یہی سوچا تھا؟ ہرگز نہیں،
आप ऐसा नहीं सोच सकते क्योंकि आप तो हमारे मौसम थे। आपने तो डॉक्यूमेंट किया, आपने तो सब कुछ आपने लिख के दिया। बार बार तकारीर में आपने बयान किया कि भावलपुर की कि इस तरह के जैसे भावलपुर को अपने बच्चों की तरह समझना। वो रियासत पाकिस्तान को के हर इलाके को चाहते थे कि खुशहाल हो, आबाद हो, लोग अपनी मर्जी से वहाँ पे काम करें, उनको रोज़गार मुहैया हो। लेकिन कायदे आज़म ये आज हम आंसुओं के साथ आपके पास यहाँ मौजूद हैं। हमारे दिल अब बंद होना शुरू हो गए हैं। अब आपके पास हम इल्तिजा लेके आए हैं, अपनी फरियाद लेके आए हैं कि ये हमारे जो करते धरते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद और आपके जाने के बाद पूरे पाकिस्तान को का तहस नहस कर दिया, और उसमें हमारे भावलपुर का इलाका जो है ख़ास तौर पे वो उसकी जद में रहा। 53 साल से हम गुजारिश कर रहे हैं, 53 साल से हमारे लोग शहीद हुए, हमारे घर गिरफ्तार हुए, घर बर्बाद हुए, सारी तबाही आई, हमारी ज़राअत ख़त्म हो गई, हमारा कोई वाली वारिस नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। आज मैं खुल्लम खुल्ला ये कह रहा हूँ और ये बबांगे दोहल कह रहा हूँ कि भावलपुर का कोई वाली वारिस नहीं है सिवाय अल्लाह के और आपके। अगर आपके पास हम ये फरियाद पहुँचा सकें, हमारा सिर्फ ये मुतालबा, हम पाकिस्तान से मुखलिस हैं, पाकिस्तान से आपसे ज़्यादा मुखलिस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हम पाकिस्तान की खुशहाली देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहते हैं, पाकिस्तान का नाम बड़ा होना देखना चाहते हैं। लेकिन जब तक ये कानून फितरत है, जब तक आप लोगों को खुशहाल नहीं करेंगे, उनके हुकूक नहीं देंगे, आपके घर में, आपके मुल्क में, चाहे आप महल में रह रहे हैं, चाहे आप ऐवानों में रह रहे हैं, आपको कभी खुशहाली और खुशी मुयस्सर नहीं हो सकती। इसलिए मैं अपने तौर पे अपने साथियों की तरफ से जो लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, क्या ये लोग सैर करने आए यहाँ पे? बाबा कौम के पास ये फरियाद देने के लिए है। सारी रात इन्होंने सोचा होगा कि हम जाएंगे कायद आज़म के पास, हम वहाँ हाज़िरी देंगे। हमने हाज़िरी दी, हमने दुआएं की आपके लिए। अब हम जिन्होंने भी पाकिस्तान को अब अपने कब्ज़े में लिया हुआ है, या वो करते धरता हैं, या हुकूमतें हैं, या वज़ीर आज़म हैं, जो भी लोग हैं, हम उन सब से गुजारिश कर रहे हैं कि आप कायदे आज़म के फरमूदात के मुताबिक हमारा हक जो है वो हमें दिया जाए, सूबा भावलपुर बहाल किया जाए, और सूबा भावलपुर के वसाइल जब आवाम पे लगेंगे, उनके हाथों से लगेंगे और उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लगेंगे, तो कोई ऐसी वजह नहीं है। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हम सब चीज़ें उस चीज़ का, हर चीज़ का अहाता कर चुके हैं कि हम, और मैं आज असल में कल रात भी मैं बैठा हुआ ये सोच रहा था कि हमारे पास कितनी चीज़ें आती हैं और कैसे आती हैं। मैं बारहा कह चुका हूँ कि हमारा जो रिसोर्सेज हैं भावलपुर की, इसी नॉन मॉडर्न जो हमारी वसाइल हैं, हमारे पास कोई मॉडर्न वसाइल नहीं है हमारे पास, इसी नॉन मॉडर्न वसाइल से हम अपनी पैदावार को इतना बढ़ा सकते हैं कि जितने भी इलाके पाकिस्तान के हैं वो पीछे रह जाएंगे। और आज मैं ये गारंटी से कहता हूँ, ये मेरी अपनी कैलकुलेशन है, मेरे पास जो भी आना चाहे, अगर भावलपुर को सूबा बनाया जाता है, अगर सूबा बनाया जाता है और इसकी आमदनी हमें सूबाई हुकूमत को दी जाती है और हमें ये इख्तियार दिया जाता है कि हम अपने वसाइल को बढ़ाएं, उनको मॉडर्नाइज करें, 8 साल के अंदर मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ, अगर 8 साल के अंदर भावलपुर का इलाका खुशहाल ना हो जाए और हम IMF का जितना कर्जा है पाकिस्तान का, उसका आधा अगर हम ना ख़त्म कर दें, तो आप हमारा सूबा वापस ले लीजिए। 8 साल सिर्फ, ये मैंने बड़ी एहतियात से कहा है, हो सकता है उससे पहले ये हो जाए, लेकिन 8 साल की ये में हमारी कैलकुलेशन है। हम बैठे हैं, माहिरीन के साथ बातें की है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, हम इसके क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। और कल भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से बताया कि भावलपुर को जानबूझ के पसमानदा रखा जा रहा है, जानबूझ को इसके साथ ऐसी ज्यादती की जा रही है कि हमें समझ नहीं आती कि ऐसा हमने कैसा क्या गुनाह कर दिया।
हमारे रियासत के लोगों ने क्या ऐसा गुनाह कर दिया है, क्या ऐसी ज्यादती कर दी है कि जिसकी वजह से हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती की जा रही है। हमने किसी रियासती इदारे के खिलाफ कोई बात की है या उनके खिलाफ खड़े हुए हैं? क्या हमने किसी के साथ धोखे किए हैं, या हम मेहनत नहीं करते हैं, या हम चोर चकारी करते हैं, या हम डाकू हैं? क्या है ऐसी चीज़ जो हमारे इलाके के साथ आप मंसूब करके उसको बिल्कुल ऐसे छोड़ा हुआ है कि जैसे हिंदुस्तान का इलाका हो, कि इसको हमने कुछ नहीं देना है? तो आप मेहरबानी करें, आप अपने अवाम के साथ मुखलिस हों, पाकिस्तान के साथ मुखलिस हों। और मैं एक बार फिर दोहराना चाह रहा हूँ ये पूरा मीडिया, कल भी मैं बता के आया हूँ, जहाँ पे माशाल्लाह हमारे कराची के मीडिया ने हमारी बहुत बेहतरीन हमारी पजीराई की, और ऐसे लोग मीडिया के और दूसरे लोग निकल के आए कि जो आम तौर पे कभी किसी महफिल में जाते ही नहीं हैं। तो हमारी गुजारिश यही है कि ये लोग सारे जो हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन वो हक पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मांग रहे हैं, अवाम की बेहतरी के लिए मांग रहे हैं। हम कोई अपने तजोरियाँ भरने के लिए नहीं मांग रहे हैं। तो मैं आपको एक बार फिर इस बात का याद करता हूँ, और इस बारगाह के सामने मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सूबा भावलपुर बहाल कर दिया जाए और उसकी आमदनी हमारे सूबाई हुकूमत के पास हो, और हमें मॉडर्नाइज करने के लिए या इंटरनेशनल कनेक्ट होने के लिए जो चीज़ें हम करना चाहते हैं हमें वो करने दिया जाए, तो सिर्फ 8 साल के अंदर ना सिर्फ ये इलाका खुशहाल होगा, बल्कि हम ये वादा करते हैं, हम ये अहद करते हैं कि IMF का जितना भी कर्जा है 268 बिलियन रुपीस का डॉलर्स का है, हम उसका आधा जो है वो हम सब हुकूमत पाकिस्तान के हवाले करेंगे कि जाइए आप ये पूरी कैलकुलेशन के साथ। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ, आप सब इतनी दूर से तशरीफ़ लेके आए, अपने बच्चों को छोड़ के आए, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है और हम सबको ये अंदाज़ा है। मेरे जितने भी मेहमान यहाँ मौजूद हैं, जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं इनका इंतहाई तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने हम सब मिल के हमने कायद आज़म की बारगाह में एक तारीख़ी मौका था। यहाँ पे आज तक कोई भी इस तरह के ना भावलपुर का आता है ना मुल्तान का आता है, इस्लामाबाद से उठते हैं यहाँ पहुँच जाते हैं, कराची वाले उठते हैं यहाँ उठ जाते हैं। आपने एक तारीख़ रकम की है ये, और मैं आपको ये उसके ऊपर खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप कायद आज़म के मज़ार पे आए, हमने बाबा को अपना याद रखा, उनके पास फरियाद पेश की, और उम्मीद है कि ये हमारे जो करता लोग हैं जिनके पास, जैसे बुखारी साहब ने कहा, कोई इसके लिए हमें पार्लियामेंट नहीं चाहिए, कोई सेनेटर से नहीं है, जो कुछ होना था वो पहले ही हो चुका है। 2009 मई 2012 को वो करारदाद पंजाब असम्बली में पास हुई है, सूबा की बहाली के लिए सेनेट में गई है, सैफरान कमेटी ने उसको अप्रूव किया है, चेयरमैन ने उस पर सिर्फ साइन करना था और सूबा बहाल हो जाना था। लेकिन हमारे साथ वहाँ पे भी ज्यादती की गई कि चेयरमैन साहब जो हैं वो गिलानी साहब जो हैं सेनेट के चेयरमैन, उन्होंने उसको टेबल के नीचे फेंक दिया। तो ऐसे लोगों के साथ हमारा वास्ता है। आप मुत्तहिद रहिए, साथ रहिए, हम रहे ना रहें, बुखारी साहब रहे ना रहें, आप लोगों ने खुद क़यादत करनी है अपनी इंशाअल्लाह। आप में से हर बंदे के पास, मैं सिद्ध के दिल से कह रहा हूँ, आप में से हर एक के पास मुझसे ज़्यादा सलाहियत मौजूद है। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि भावलपुर के क्या मसाइल हैं, भावलपुर के साथ क्या ज्यादती हुई। हम तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन आप जहाँ भी जाएं, जिस जगह भी आप बैठें, ये गुफ्तगू करें उनके साथ, उनको प्यार से समझाएं कि देखो, जब तक आपको हकूक़ नहीं मिलेंगे आपका कुछ नहीं होने वाला, क़यामत तक आप ऐसे रहेंगे और पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल करे, हमारी काविश को कबूल करे। जहाँ जहाँ से बुज़ुर्ग आए हुए हैं, बड़े आए हुए हैं, छोटे आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, और इन सब की यहाँ आना जो है वो इबादत शुमार हो, इबादत में शुमार हो कि हम एक बेहतरीन काज के लिए, बेहतरीन मकसद के लिए यहाँ पे हम आए हुए हैं। और हमारी दुआ है कि परवरदिगार आलम इन लोगों को, हमारे जो सर पे सवार हैं या पाकिस्तान के सर पे सवार हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, जो भी हैं, लेकिन हमारे लिए सुबह हमारा बहाल करो। बाकी तुम जो खाना पीना है खाते रहो, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है जी।